Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Adda. Again, I'm in front of you with my new topic, and today's topic is microsporogenesis. Before starting it, again I have a word with you. Please, if you are enjoying my videos, these are helpful in your study, then please don't forget like, share and subscribe, and also press the bell icon. As I upload my video, then you will find notification in your mobile phone. Please comments also in my channel, because your comments act as a ATP for me, boost me, and it again act as a very good and positivity, maintain positivity in me. So please like, share and subscribe. Now come to the today's topic, that is microsporogenesis. Microsporogenesis. In the process of microsporogenesis, we will understood how in the microsporangium, that is known as pollen sac, pollen grains will form. This will understand. This is we will understand in the process of microsporogenesis. Means formation of microspores. Formation of microspores through the pollen mother cell. This is also known as PMC, or microspore mother cell, MMC, by the meiosis. This is known as microsporogenesis. What I told you, in the process of microsporogenesis, formation of microspores through the pollen mother cell or microspore mother cell by the meiosis. This is called microsporogenesis. Now come to into some details. अगर हम देखना चाहते हैं initially in the process of microsporogenesis, first we have anther wall. Anther wall. These anther wall made by the 4 layers. We know about it. Inside it, the sac is known as anther, have microsporangium. These microsporangium in future known as pollen sac. In future, this microsporangium is known as pollen sac, and in this microsporangium, in the microsporangium, cells are compactly arranged, and these cells are known as archegonial cells or sporogenous cells. What I said? Microsporangium have a cell mass, compactly arranged cell mass. These cell mass are known as archegonial cell or sporogenous cell. Means if this is the microsporangium, then these have the compactly arranged cell mass, and these cell mass is known as sporogenous cell, and this is found in 2n condition. Got it? After some time, when during the maturation of anther,
anther will increase in their size. Anther will increase in their size. When anther will increase their size, then this cavity will become bigger. When cavity will become bigger, then these cells which are compactly arranged in this microsporangium, they will become loose. Means after some time, anther will mature and increase in their size. Anther will increase their size, then mass will loosely arranged. ये क्या कहा हमने? अब ये सपोज करिए माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो अब भाई ये साइज में कैसा हो गया? बिगर इन साइज. कैसा हो गया? बिगर इन साइज. कौन हो गया बिगर इन साइज? माइक्रोस्पोरेंजियम. तो अब इसके अंदर हमारी जो स्पोरोजेनस सेल भरी हुई थी वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी? लूज हो जाएगी. तो जो इनके बीच में स्टेराइल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बढ़ा था ना हमने, इट विल डिसॉल्व हियर. अब वो गायब हो गया. वो इनके बीच में इन बिटवीन नहीं है. मतलब हम अगर मानकर चलते इनके बीच में 4 स्पोरोजिनस सेल थी, तो वो 4 स्पोरोजिनस सेल के बीच में जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू था, नाउ इट विल डिसॉल्व हियर और ये ऐसे फ्री फॉर्म में लूजली अरेंज हो जाएंगी. फिर क्या होगा? In these all loosely arranged sporogenous cells, few cells will become degenerate. Few cells will become degenerate और डिसअपियर. कुछ क्या हो जाएंगी उसमें से? डिजेनरेट हो जाएंगी. एंड रेस्ट ऑल विल कन्वर्ट इनटू पीएमसी और एमएमसी. हमने क्या कहा? एंथर अपनी साइज में बड़ा होगा. स्पोरोजिनस सेल जो कंपैक्टली अरेंज थे, कनेक्टिव टिश्यू उनके बीच में था, उनको ऐड किया हुआ था, वो गायब हो गया, डिसॉल्व हो गया, बिगर हो गया. एंथर का साइज बड़ा हुआ तो जो सेल्स थी वो भी कैसी हो गई? दूर दूर बिखर गई. जो स्पोरोजिनस सेल थी, जितने स्पोरोजिनस सेल हैं वो सभी के सभी क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगे मैच्योरेशन में, एंड दे विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द पीएमसी और एमएमसी. बट during the maturation time, few cells will become degenerate and these degenerate cells will utilized or absorbed by the sporogenous cell mass. तो हमने क्या कहा? एक बार फिर से थोड़ा समझते हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका? माइक्रोस्पोर का. ये माइक्रोस्पोर बन किससे रहा है? थ्रू द पीएमसी और एमएमसी बाय द मियोसिस. स्टेप्स में देख लेते हैं ये सब क्या हो गए? स्टेप्स हो गए. तो सबसे पहले एंथर वॉल है. कितनी एंथर वॉल है हम सब जानते हैं? 4 है. नंबर बी कितनी है? 4 है. एंथर के पास जो हम सैक है या खोल है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम. फ्यूचर में यही माइक्रोस्पोरेंजियम को हम कॉलन सेक कहेंगे. इन द माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड दीज सेल्स आर नोन एज आर्चिगोनियल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल. मैंने क्या कहा कि ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है. ये क्या है हमारा? माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम है
माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेल्स भरी हुई है. द सेल नेम इज स्पोरोजेनस सेल दैट इज फाउंड इन 2n condition. Then after some time anther will mature and increase in their size, then mass will loosely arrange. क्या हो जाएगा? मास कैसे हो जाएगा? लूजली अरेंज हो जाएगा. In these all loosely arranged sporogenous cell, few cell will become degenerate. कुछ क्या हो जाएंगी? Degenerate हो जाएंगी. And rest all will convert into the pollen mother cell or microspore mother cell. This is also found in 2n condition. ये भी किस में मिलते हैं? 2n condition में मिलते हैं. These degenerate cells, जो cells degenerate हुई थी, will utilized or absorbed by the sporogenous cell mass. अब हम इसके आगे देखते हैं. आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. Okay, now come to the next step. तो हमने क्या कहा आपसे कि अब हमारे पास क्या बन गई? स्पोरोजेनस सेल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? पॉलन मदर सेल में. एंड आफ्टर इट इन द पॉलन मदर सेल means PMC or MMC, meiosis will take place by which microspores will produce. हमने क्या कहा? सबसे पहले ये मास ऑफ सेल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्पोरोजिनस सेल, या इसी को कहते हैं आर्चीगोनियल सेल्स कहते हैं. ये कैसी है? 2n नंबर. इसका नेचर कैसा है? 2n है. थोड़ी देर बाद हमने कहा कि ये बदल जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी. किस में कन्वर्ट हो जाएगी? MMC में बदल जाएगी. इनमें से कुछ जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे. जो डिजेनरेट होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे फर्दर दूसरे स्पोरोजेनस के अपने मैचुरेशन में. तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो सेल्स है वो सबकी सब किस में बदल गई? जितनी स्पोरोजेनस सेल थी वो सब किस में बदल गई? MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल में. ये भी अगेन 2n कंडीशन में है. इन दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल नाउ meiosis will takes place. यहाँ पर क्या हो जाएगी? meiosis हो जाएगी. तो जैसे 1 2 3 4 ये क्या हो जाएंगे? पूरे टेट्राड कौन प्रोड्यूस हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर्स. कौन बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स. जरा समझना आप, हमने क्या कहा अभी तक में? ये इनके बाहर की मास भाई ये एंथर है, एंथर वॉल के थ्रू है जिसमें अंदर ऑक्यूपाइड में स्पोरोजेनस सेल भरे हुए हैं. थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये हमारा जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं, अभी इसको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम के. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जब हमारा MMC बनेगा, ये रहा हमारा MMC बन गया और ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है. तो जब ये MMC हमारा माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम को भी हम क्या कहना शुरू कर देंगे? पॉलन सैक. क्या कहेंगे? पॉलन सैक कहना शुरू कर देंगे. और ये जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, जो हमारे क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं. आगे चल के इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को क्या कहा जाने लगता है? पॉलन ग्रेन्स कहा जाने लगता है. और यही पॉलन ग्रेन्स, these pollen grains will produce male gamete. These pollen grains will produce male gamete. अब ये जो हमारा टेट्राड माइक्रोस्पोर बना है, it may be arranged by 4 manner. ये 4 तरीके से टेट्राड स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोर का अरेंज हो सकता है. अब हम पहला समझ लेते हैं. तो 1 2 3 एक इसके पीछे की तरफ है, एक हम दूसरा समझ लेते हैं. तो इस तरह से
1 2 3 4, ये हमारा तीसरा है 1 2 3 4, और एक हमारा ऐसा एफ शेप का है दिस वन 1 2 3 4। देन दिस वन जिसे हम कहते हैं लीनियर टेट्राड। क्या कह रहे हैं? लीनियर टेट्राड। तो जो माइक्रोस्पोर है इनसाइड द पॉलन सेक दे मे बी अरेंज्ड इन अ लीनियर मैनर, दिस इज नोन एज लीनियर टेट्राड। दिस इज नोन एज आइसोलैटरल टेट्राड। Isolateral tetrad pollen sac or microsporangium. This is the F zone known as decusate tetrad। क्या कहा मैंने? अब हमारा देखिए एक रह गया, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये जो हमारा टेट्राहेड्रल टेट्राड है मेनली कॉमनली जो माइक्रोस्पोर्स अरेंज होते हैं इनसाइड द पॉलन सेक आर माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर अरेंज्ड इन दिस टाइप। माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ पॉलन सेक आर माइक्रोस्पोरेंजियम मेनली इन अ टेट्राहेड्रल tetrad structure. Again this may be a question of board examination in form of MCQ, and also it may be asked in few competitions. Pollen grains in the process of microsporogenesis are arranged in the tetrahedral tetrad condition, but still they may be also be arranged in a linear manner, isolateral tetrad structure and decusate tetrad structure. This is known as F shaped. This is known as F-shaped. Magnoliaceae family have the F-shaped decusate tetrad structure. Magnoliaceae family have the F-shaped decusate tetrad structure, and mainly we will study about this one. This is the tetrahedral tetrad structure. By this we finish our topic microsporogenesis. If these videos are helpful, again please like, share and subscribe.